आज आपकी अनुमति से सम्मानीय सदन के सम्मुख बड़ी विनम्रता के साथ भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते हिंदुस्तान की आजादी के 75वें सभी ऑनरेबल मेंबर प्लीज अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर जाइए। मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करना चाहती हूं कि हमारे देश में अभी तो इंट्रोडक्शन है, अभी आप जी अभी तो इंट्रोड्यूस ही होना है ना, कुछ ज्यादा बोलना चाहते हैं जी। महिला समानता के दृष्टिकोण से, एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से महिला की विवाह की आयु को बढ़ाने का संकल्प, इस संकल्प के साथ that the enactments relating to age of marriage of parties, केवल मूव करिए, आप केवल मूव कीजिए, ओनली मूव करिए। मैं कर रही हूँ, क्या मूव कर रही हूँ, थोड़ा सा आपकी अनुमति से बोलना चाहती हूँ। Relating to age of marriage of parties such as the Indian Christian Marriage Act 1872, जी, Parsi Marriage Act and Divorce Act 1936, Muslim Personal Law Sharia Application Act 1937, Special Marriage Act 1954, Hindu Marriage Act 1955, Foreign Marriage Act 1957, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसलिए आपकी अनुमति से एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से so I rise to move. Sir, I rise today to introduce Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021. जी श्री अधीर रंजन जी। सर आज सर अचानक अधीर जी एक मिनट सर अचानक ये सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस में हम ये देखने को मिला कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया। सर हम एक सलाह देना चाहते हैं सरकार को कि हड़बड़ी में बहुत सारी चीज गड़बड़ी होते हैं। सर हिंदुस्तान में इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रहे हैं और इसके साथ साथ ये सरकार अब तक ना किसी स्टेक होल्डर से बातचीत की, ना कोई स्टेट से कंसल्ट किए हैं, लेकिन जल्दबाजी में ये अचानक ये सप्लीमेंटरी लिस्ट में ये बिल को लाया गया। सर एक के बाद एक ये बिल सरकार क्यों ऐसा इस तरीके से लाते हैं, ये देखकर मुझे ताजुब होते हैं। ये सरकार की नापाक इरादे साफ हो जाते हैं। सर हमारा मांग है ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में तुरंत रेफर किया जाए। श्री गौरव गोगोई, ये हमारा मांग है, ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में तुरंत रेफर किया जाए। सभापति महोदय, हम ये बिल इसका इंट्रोडक्शन का विरोध करता हूं क्योंकि 18 लॉ कमीशन में कंसल्टेशन पेपर जो रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ है उसमें भी लिखा गया है दैट द लीगल एज फॉर majority should be recognized uniformly. 18 years should be recognized uniformly as the legal age for marriage for men and women alike. ये लॉ कमीशन का रिपोर्ट है। इस बिल के द्वारा विभिन्न पर्सनल लॉज इफेक्ट होंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि ग्रेटर स्क्रूटिनी के लिए स्टैंडिंग कमेटी में स्वागत राय जी, स्वागत प्रोफेसर स्वागत राय जी, प्लीज बी अटेंटिव एंड स्पीक जी। 1. I beg to oppose the introduction of the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021. As it is, I oppose the way in which the government has brought this bill in a hurry. This bill needs total discussion among all stakeholders. The minority people are totally opposed to this bill. The EML. E.T. Mohammed Bashir. Sir, E.T. Mohammed Bashir ji. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Sir, I oppose the very introduction of this bill. Sir, this bill is unwanted, it is unconstitutional, and it is violation of Article 25 of the Constitution. Sir, this bill will make far-reaching consequences in this country, sir. This is this attack
on the personal law and the fundamental right in this country, sir. Government should withdraw this, sir. This, of course, is nothing but to gain. Thank you. Thank you very much, sir. Sir, the basic purpose of a legislation is to see whether the law is enforceable. Sir, as far as this bill is concerned, enhancing the marriage age of 18 to 21, whether this bill can be enforceable, because the rural population, especially the uneducated youth, uneducated and unemployed girls, they have to continue up to 21 years of age for getting the marriage. So whether this law is enforceable, that is the first point. And the second one is regarding 18 years of age is the age which is limited by the Constitution to have the citizenship acquisition. 18 years is being prescribed. So it is the right of a girl. Sir, see, I'm finishing. It is the right of a girl at the age of 18 This is a retrogressive to have a amendment. This is against right to freedom of under Article 19. An 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relation under POSCO Act, but you are denying the right to marriage. What have you done for the 18-year-old? The women labor participant force in India is lower than Somalia. Your Beti Bachao, Beti Padhao, 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. Thank you, sir. का तरीका क्या है? कल तक जो बिल दिखाया था उसकी तैयारी करके हम लोग आए. अभी सप्लीमेंट्री बिजनेस सर्कुलेट करके जो बिल पेश करना चाहते हैं, सही नहीं तरीका. हमें उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है. जब 18 श्री पी.आर. नटराजन जी, सभापति महोदय, इधर मुझे बात करना. ये बिल के ऊपर सही तरीके से चर्चा करने की आवश्यकता है. इसलिए जेपीसी के पास से बिल भेजने की व्यवस्था करें, ये मेरी सूचना है. सुप्रिया जी. Sir, exactly. Sir, this is the second or third time consecutively they aggressively bring in bills and nobody from the opposition is consulted. Whatever is discussed in the Business Advisory Committee is never implemented on the floor of the House. So I first want to condemn this new practice this government is doing. They want the bill needs to be scrutinized, all stakeholders should be consulted, and then I think we must unanimously pass any reforms. If they are got to do with women, I think if you are trying to empower people, you must consult all stakeholders and you must send this for detailed more discussions to the standing committee. Thank you. Please. Thank you, sir. Sir, there are people who support this bill and there is a lot of opposition to this bill also. The government, except for the women's reservation bill, it doesn't believe in consulting with anybody. So I think it's very important that such an important bill has to be sent to the standing committee or the select committee, and they have to review it and ask for opinions in civil society and then bring the bill. Yes. अनुभव जी. जी सर, मेरे लिए 7 साल से ज्यादा हो चुका है इस सदन में रहने के लिए. राज्यसभा में भी था, लोकसभा में भी आज. सर, ऐसे कई विषय पर यहाँ पर बिल्स आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनको बहुत अच्छी तरह से डिबेट किया गया है, डेलिब्रेशंस हुए हैं, चर्चा बहुत लंबी हुई है, कभी स्टैंडिंग कमेटी, कभी सिलेक्ट कमेटी जाकर बिल्स पास हुई हैं. पर इस तरह से हेस्टिली एक बिल को ऑल ऑफ ए सडन सप्लीमेंट के हिसाब से लाना, इंट्रोड्यूस करना, बिना चर्चा के उसको डिबेट बिना किए पास करवाना इज नॉट पार्लियामेंट्री, सर. इट इज बियॉन्ड द डेमोक्रेसी. आप रिस्पॉन्ड करेंगी प्लीज. Sir, the gentleman parliamentarian says that haste is a reflection of my introduction. I say to the honorable gentleman this: we are in our democracy 75 years late in providing equal rights to men and women to enter into matrimony. इस बात का उल्लेख करना महोदय उचित होगा
कि 19वीं शताब्दी में लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष थी। 1940 तक शादी की आयु को 12 से 14 किया गया। 78 में 15 साल तक की लड़कियों का ब्याह कर दिया गया। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। ये कहना कि अगर महिला शिक्षित नहीं है तो वो अपने अधिकारों का या ज्ञान रख पाएगी ना उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएगी, देश की ग्रामीण अंचल की बहनों का इससे बड़ा अपमान इस सदन में नहीं हो सकता। आज इस सदन के सम्मुख मैं ये कहना चाहूंगी कि 2015 से लेकर 2020 तक हमारे देश में बाल विवाह रोकने की संख्या 20 लाख विवाह रोके गए हैं, ऐसे रिसर्च हमको बतलाती है। NFHS 5 का डेटा बतलाता है कि 15 साल से 18 साल की उम्र में 7% बेटियां गर्भवती पाई गई हैं। 18 साल से कम उम्र में 23% लड़कियों का ब्याह रचा दिया गया, जबकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता। और आज जो लोग आपने अपनी बात रखी, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है, विरोध कर रहे आपने अपनी बात रखी है ना। ऑनरेबल मिनिस्टर इज स्पीकिंग, के आगे मंत्री जी उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। महिला मंत्री है, आप कृपया सीट पर जाइए, शांतिपूर्वक सुनिए। आप अपनी बात रख दी है। That this house cannot be witness to that disrespect to women is my contention today. महोदय, जिन लोगों ने कहा कि ये अमेंडमेंट सेक्युलर नहीं है, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट के कथन पर। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 382 of 2010, सुप्रीम कोर्ट का स्वयं मानना है कि ये एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिंदू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय की महिलाओं को समानता का अधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। महोदय, इस निर्णय की सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, मार्मिक विषयों को मैं समझती हूं। मेरे कथन में गतिरोध लाने वाले विपक्ष के सज्जनों से कहना चाहती हूं कि मेरी बात को अगर पूरा सुन लेते तो उनका ध्यान इस बात पर आकृष्ट होता कि मैं स्वयं सरकार की ओर से ये प्रस्तावना करना चाहती हूं कि स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो। लेकिन महोदय, ये भी कहना उचित होगा, मुख्यतः आज जो आवाजें उठी, उन आवाजों ने स्वीकार किया that the age of marriage should be uniformly applicable across all religions, all castes, all creeds, overriding any custom, any law which seeks to discriminate against women. So those men who stood in this house in support of uniformity in applicability of the law have my gratitude. And sir, on behalf of the government, I would request that it be sent to the standing committee. आज का ये निर्णय, ये इंट्रोडक्शन राष्ट्र के इतिहास में एक निर्णायक कदम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्तावना को अपना आशीर्वाद दिया कि इस
देश में किसी महिला के साथ भेदभाव ना हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्तावना को आशीर्वाद दिया कि जब 15 और 18 साल की बेटियों का गर्भवती होने से 10% मिसकैरेज का चांस रहता है, तो बेटियों के संरक्षण में ये प्रस्तावना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। महिला संरक्षण और सम्मान के लिए प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं देश की बहनों की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं और सदन से विनम्रता से अपील करती हूं कि मुझे ये इंट्रोड्यूस करने दिया जाए। है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हम वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें।